Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study our chapter metals and non-metals, and in this we will study topic occurrence of metals. So let's understand that how metals occur. Occurrence of metals, we see that metals occurs in either free state or native state, or it's possible that it occur in combined state. या तो free state में occur होगा, so it directly we can use it, or if it is in combined state, अगर वो किसी दो चीजों से मिश्र से बना है, so it's possible that it occurs in oxides, it occurs in carbonates, it occurs in sulfides or nitrates. So here what we see, जो minerals होते हैं, they are the naturally occurring compounds of metals. Metals के nature में जो occur होने वाले compound होते हैं, जिनके साथ कुछ impurities होती हैं, उन compounds को हम क्या बोलते हैं? Minerals बोलते हैं, right? Minerals, they are naturally occurring compounds of metal along with the other impurity are known as minerals. We can see that there are mines where we see 50% metals, and here we see the 700 feet, and it is here 95% 1000 feet. Mine C, which is here 80% 500 feet. What are ores? Ores, the minerals from which metals are extracted. ऐसे जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स. वी हैव गैंग यू दैट इज ओर्स कंटेनिंग मैनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. जब आप ओर्स को लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सैंड होता है, सॉफ्ट रॉकी सब्सटेंसेस हो सकती हैं, सॉइल हो सकती है, तो आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, राइट? तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग बोलते हैं. Now let's understand what do you mean by metallurgy. Metallurgy, what is this metallurgy? It is here the process used for extraction of metals. Metals को उसकी pure form में लेके आना, कहाँ से? From their ores. The process is called metallurgy. So now in metallurgy that includes removal of gangue. Here we have reduction, concentration of ores. Here we have refining. We can refine them. Now let's understand ores. Ores, as a concentration of ores, we have concentrated ores of highly reactive metal. We have concentrated ore of moderately reactive metal. We have here concentrated ore of less reactive metal. जो ओर्स होती हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल की भी होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की भी होती हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल की भी होती हैं. सो नाउ हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जो ओर होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? मॉडरेटरी जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो बीच में होते हैं, ना हाईली रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव, उनमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोनेट ओर में, या फिर सल्फाइड की ओर होती है. उनका प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हम उसको मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं. रिडक्शन किसके साथ करते हैं? या तो कार्बन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ, और फिर एक इम्प्योर मेटल बनता है. इम्प्योर मेटल से वी get through with this refining and we get a pure metal. Now in the concentrated ore of less reactive metal we have a sulfide ore. This sulfide ore we get here the process that is roasting का प्रोसेस होता है, और इसमें हमारा क्या बनता है? इम्प्योर मेटल. इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं और फिर आपको क्या मिलता है? एक प्योर मेटल. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. Metal of medium reactivity, we see that this reactivity series starts from potassium, sodium, lithium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, mercury, silver and gold. So now downside we see these metals which are very less reactive. The upside we see the metals which are highly reactive, right? Now here metal of medium reactivity we have sulfides और कार्बोनेट्स. किस फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में. इनको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ऑक्साइड्स में. इन एक्सेस ऑफ एयर, अगर आप इसको हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर रोस्टिंग क्या प्रोसेस होता है? कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली.
जब आप किसी भी सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसमें, एक्सेस ऑफ एयर में, किसमें, एक्सेस ऑफ एयर में, इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग, वी कॉल्ड इट रोस्टिंग, राइट। नाउ जिंक सल्फाइड आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, O2 ऑक्सीजन के साथ, वी आर सेइंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, so here it forms here zinc oxide plus SO2, right? Now after this we say कार्बोनेट्स में हम ऑक्साइड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन लिमिटेड एयर, अब एयर का अमाउंट कम रखेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। सो हियर कार्बोनेट ओर्स जो होती हैं, यहाँ से कार्बोनेट ओर्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग, प्रोसेस तो हीटिंग का ही रहता है, बट यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर देते हैं और यहाँ पर हम देते हैं लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर की प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट को लिया और जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया तो क्या मिला, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी गेट द मेटल लाइक ऑक्साइड्स मिलती है हमारे को, एंड देन वी रिड्यूस इट। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन में वी गेट हियर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, या तो आप कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे कार्बन ले सकते हैं या कोक ले सकते हैं, या फिर आप रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवा के, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट विद द मेटल्स ऑक्साइड्स। वी आर टेकिंग जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को आपने कोक के साथ रिएक्ट किया, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो इस तरह से आपने मेटल को क्या किया, इसमें से सेपरेट किया। नाउ वी हैव रिडक्शन with the second, that is highly reactive metal like sodium, calcium, aluminium and chlorine. So in this what we do, किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, लाइक इफ आई एम टेकिंग हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस करेक्ट इट, यहाँ पर आप ले रहे हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप क्या ले रहे हैं, MgO2, वी आर टेकिंग हियर MgO2, राइट। MgO2 को आपने यहाँ पर रिएक्ट करवाया एल्यूमिनियम के साथ, सो दैट विल फॉर्म हियर MgO2, it's heated with the aluminium powder to give here, यहाँ पर आप मैग्नीज या फिर इसको आप करेक्ट कर लेना, MnO2 प्लस क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम, इट विल गिव हेयर मैग्नीशियम, मैग्नीज अलग और साथ में आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग, या राइट, Al2O3, राइट। सो हेयर वी फॉर्म this plus Al2O3 plus heat, right? So here we observe ये जो प्रोसेस होता है उसमें हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। नाउ वी हैव हियर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, सो वी नो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में, तो ये एल्यूमिनियम इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। हाउ इट डिस्प्लेसेस, ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके साथ जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा, इसके साथ सेपरेट हो जाएगा। सो हियर इट फॉर्म आयरन plus aluminium oxide, right, plus heat. Now in this we say a very important reaction, we called it thermite reaction. So what is this thermite reaction, जब भी आप कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ रिएक्शंस जब करते हैं तो बहुत अमाउंट में हीट इवोल्व होती है। अब जब ये हीट इवोल्व होती है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, मेटल को मोल्टन स्टेट में प्रोवाइड करने के लिए, उसको मोल्टन स्टेट में वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। In this we have extraction of metal of low reactivity. Here metal of low reactivity we say first of all we take here generally which exists in a free state, like you can say gold free state में अक्कर करता है, platinum react नहीं करता, free state में अक्कर करता है, and second case we have here some which exist in a combined state, like they exist in sulfide, they exist in oxides like mercury and copper. So here let's extract copper. Extraction करते हैं किसकी, कॉपर की। Here if we will take here copper sulfate, copper sulfide को आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। Here right now in this we have copper oxide,
Copper oxide when react with the copper sulfide, that heat, and then it produces copper with the sulfur oxide, right? तो आपके पास दो है, या तो सल्फाइड की फॉर्म में होगा या ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, और कैसे रिएक्ट करके आपको क्या देगा, कॉपर अलग दे देगा, राइट? नाउ सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड जब दोबारा रिएक्ट करता है तो आपके पास बनता है कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर अलग और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड अलग, राइट? Now, let's understand the extraction of mercury, which is called cinnabar. Here we take mercuric sulfide. Mercuric sulfide लिया आपने, mercuric sulfide को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, हीट किया उसको, तो आपके पास बन गया mercuric oxide HgO। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो अलग हो जाएगा। Here we say that we have here HgO। इस HgO को दोबारा से आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, we get here mercury अलग और सल्फर डाइऑक्साइड अलग, राइट? नाउ लेट्स रिफाइन द मेटल। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें हम क्या करेंगे, मेटल्स को रिफाइन करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। रिफाइनिंग ऑफ मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट प्योर। जो भी आप मेटल लेंगे रिडक्शन प्रोसेस में वो प्योर नहीं होते, तो इसलिए आपको उनको क्या करना पड़ता है, रिफाइन। दे contain impurity which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic refining. क्या की जाती है, electrolytic refining. From this, let's take electrolytic refining of copper. Here we are taking these two electrode. Pure copper as a cathode is very important experiment. You just please understand it carefully. आप क्या कर रहे हैं, प्योर कॉपर का एक यहाँ पर रोड ले रहे हैं जिसको हमने क्या कंसिडर किया, एज अ कैथोड, right? And then we are taking acidified copper sulfate solution. Here we have electrolytic tank. We connect it with a battery. We have impure copper as a anode. आपने क्या किया, impure copper को anode consider किया. Now impurity जो भी होंगी that is anode मड की तरह यहाँ पर क्या होंगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? जितना भी प्योर कॉपर होगा that moves to this insoluble impurities settle down at the bottom of anode, इसको बोलते हैं एनोड मड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटी इकट्ठी होती है, सेटल डाउन होती है एनोड के नीचे, उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हियर लेट्स अंडरस्टैंड कोरोजन। सो व्हाट इज कोरोजन? यू सी कि जो भी हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, राइट? So here we say that is called corrosion. Eating up of a metals, that is called corrosion of metals. Corrosion, that is a degradation of material. जब भी मटेरियल जो भी मटेरियल होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं टू रिएक्शन विद द एनवायरमेंट। हियर वी से सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, काले रंग का हो जाता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट? लाइक दिस। सो हियर दिस इज कॉल्ड कोरोजन। Copper reacts with the moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface. कॉपर ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है गेन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, कार्बन कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट, राइट? कॉपर रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, राइट? सेम हियर वी कैन से आयरन when react with the moist air for a long time acquire a coating of a brown flaky substance, इसको बोलते हैं rust. We called it rust, right? Now let's see what are the conditions under which iron rust. Let's take here iron nail in different test tubes. We are taking water with the air, we are taking here oil with the boiled distilled water, right? We are taking here anhydrous calcium chloride and then dry air, right? So here what do you observe? So as the time passes we see क्या हमें मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर reactions होती हैं, right? Prevention, let's see that how we can prevent it. So here this corrosion can be prevented by galvanization. आप क्या करते हैं, इसके ऊपर coating करते हैं। The process of giving a thin coating of zinc or iron or steel, राइट? जब आप पतली पतली लेयर लगाते हैं जिंक की, आयरन की या स्टील की, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, राइट? इन दिस गैल्वेनाइजेशन आयरन दैट इज एट नेगेटिव like cathode and zinc at a positive, right? Now we understand here
Alloying. Alloying is a homogeneous mixture of a two or more metal or a metal और नॉन मेटल दैट इज कॉल्ड alloy. जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलता है तो alloys की फॉर्मेशन होती है. दो से ज़्यादा भी मेटल्स हो सकते हैं. Here how it is prepared, an alloy is prepared by melting the main metal and then dissolving the other metal in a specific proportion, right? मेन मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ प्रोपोर्शन में जब हम मेल्ट करते हैं तो alloys की फॉर्मेशन होती है. Alloying, example of alloy, we can say iron. Iron that is here mixed with a small amount of, it is mixed with the carbon, right? So it forms alloys. So example of alloy we say brass, कॉपर और जिंक से बनता है. यू आर जस्ट अंडरस्टैंड इट, इसको याद कर लीजिए आप. Here bronze that is mixed with the copper and tin. Next we have here stainless steel with the iron, nickel and chromium, hard but not rust, right? Here we have, if one of the metal that is mercury, then alloy is known as amalgam. अगर किसी भी अलॉय को आप मानते हैं जिसमें आप मरकरी एक पार्ट ले रहे हैं तो इस अलॉय को हम क्या बोल देते हैं, अमलगम बोलते हैं, राइट. So here let's see the properties of alloy. The electrical conductivity of alloy is less than the of pure metal. Bronze, brass, alloys of copper, they are non-conductor of electricity. Pure gold known as the 24 karat gold, it's very soft. It is therefore not suitable for making jewelry, so that is alloyed. इसको क्या किया जाता है, सिल्वर और कॉपर के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ताकि उसको हार्ड बना सके. 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. It means that 22 part of pure gold is alloyed with the 2 part of either copper or silver. So this is all about. You please revise it and please like, share and subscribe the channel so that you will get the updates of the new videos. Thank you. Bye bye.